Yeah. Thank you, Neelam, and thank you everyone for your extended support on our community call every day at 4 p.m. And today our topic will be on hidden features of our sales and sales return. Right? We have quite good amount of features in our sales page where most of them are not aware or not used to it. So today I'll just share my screen to present the hidden features of the sales and sales returns. Right? I'll have the session for 10 to 20 minutes, and if you have any questions, you can stay back and ask after the session. Hope my screen is visible. No, Is my screen visible? no, sir. Is my screen visible? Uh, Sorry, I'll just share my screen now. Right. So my screen is visible right now. Yeah. Sorry for the delay. And as you are always aware, right? Once we click the new billing screen of ours, there is quite good of hidden features in our software. For example, once you select the customer, right, and thing. In while searching the medicine, we have a lot good amount of features, right? If you have a practice of bringing the medicines to the counter and then start billing, you can easily get the medicine first letter plus MRP, where you will find the medicine easily, right? So you no need to type the full name or alternatives. If you know the first letter of the medicine plus the MRP, you can easily build that. Also, we have given an option of entering the loose quantity. And if you want to go with multiple strips, 3 or 4 strips, no need to enter the loose quantity. You can just plus 3 number of quantity and you can use the plus symbol so that it will automatically calculate the total number of strips. Fine. This is one hidden feature what we have. Along with this, if the customer, for example, the bill amount is 857 and the customer has given the 1,000 rupees. So if your staffs or someone are aware of the exact change has to be given, you can use our tender page as well here.
So you can enter the exact amount given by the customer, and it will display you the balance amount to be given. Right. So these are one of the features in our software. And once you save the, and once you complete the bill, right, with other things, and you can set the reminder as well as is always aware of that. You can set the reminder days here, and also you can set the prescription dosage time if required. If there is mentioned, you can also set the dosage time. And once you save the software, save the bill, you, if the customer needs the same bill after a month or a given time, from the screen itself, you can reorder the medicine. You can just select all, and whichever medicine they need, you can just click and reorder the medicine without any. You don't need to type the medicines again, right? These are the other feature we have. Same thing, you can save it over here. And in sales returns, we have given options to get the return from the same sales page as well. For example, if you want to go with the sales return on this medicine, you can select whichever the medicine which the customer is willing to return it, and also you can go from the sales bill itself. Now we have a new feature where we have a OTP verification. So the OTP will be sent to a customer's mobile number. So once you enter the OTP, the return will be saved. Just a minute. In this way, you can take a safe sales return, right? If you want to opt this OTP option, the sales return will happen only from the sales page. You cannot directly go on, click the sales return and add new in that, right? In customer billing, while billing the customer for a new customer, you can also check the customers outstanding as well as the family members outstanding. Here, if there is any outstanding of the family members, you can also check over here along with the dues. Right now, there is no outstanding for any family member. So if there is any outstanding, it will be displayed here, right? And if customer comes with a particular thing, for example, they need eye drops, you want to check the entire any keyword with a particular eye, right? You can use the star symbol, and once you type eye, it will call all the products which contains eye, EYE, right? In this way, you can use this option to search, extended your searches, right? And in the past, we have given an option where you can only save the prescription through our mobile app. In the recent update, we have got that in our web page as well. So once you save the bill, you can go to more section and you can scroll down where you can find our prescription upload page. From here, you can upload the prescription, right? You can save it in your computer and you can upload it, right? Now it is available in our web as well. So do you have any questions so far? Hello. Yes, yes, PM, sir. Yeah. Can we make a sales return in the sales invoice itself? Because if some customer wants to return some item and doing a purchase also, so can we Yes. do it in the same sales invoice, both plus and minus? Sir, we cannot do that. See, for example, if you already build a bill and given to the customer, so after that he's coming back, the bill was already saved. You can go to that bill and do the sales return. In the same page, if he returns all his items and you want to
is possible. No, I'm not asking that. When a customer is coming and making a new purchase, Okay. at that time he is returning some of the items he has bought earlier. Okay. So can we do a negative sales in the sales invoice, new sales invoice itself, so that the amount gets adjusted and the inventory also gets adjusted? No, sir. At present, we don't have that option. Because And now, it, because if that is happening, then the customer is having a chance to see what he has returned and what he has got and how much money is returned. He has got a overview of all these things in a single paper. I agreed, sir. But we have to see other things as well. But I will take this point and we'll get back with our team. I want to discuss that. So, can Okay. I have know your medical name, sir? It's Lakshmi Medicals and Surgicals, Okay. Which area, sir? Tamil Nadu. சார் நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண பேசி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சார். Okay. நான் கால் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. Okay. Next, sir, SBM Pharma, please. Sir, yes, SBM Pharma. Yes, sir, ACME. Yes, sir. Hanuman. हेलो Yes, sir. सर, जब सेल इनवॉइस बनाते हैं हम हाँ जी. तो उसमें सर कस्टमर नाम डालने में कस्टमर का लिस्ट बहुत कम आ रहा है सर. जो अपने को कस्टमर चाहिए उसके नाम से हम सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं. कस्टमर नाम सर्च समझो आप मेरे पास कल्पेश नाम के 6 से 7 कस्टमर है. उसमें कोई ठीक है. कल्पेश पटेल है, कोई कल्पेश शर्मा है, कुछ भी है. कल्पेश अच्छा. डालते हैं तो वो खाली 5 ही नेम खुलेगा. उसके बाद में ना तो मोर स्क्रॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, ना कुछ और ऑप्शन आ रहा है. सर आपने मोबाइल नंबर का ऑप्शन है ना सर, वो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक सर रहेगा. एक ही कस्टमर है, समझो आप रोज के रोज अगर अपने यहाँ विजिट कर रहा है, कस्टमर से अच्छे रिलेशन है, लेकिन स्टाफ हो या मैं हूँ, नाम अगर मोबाइल नंबर हम बार बार उसको पूछेंगे तो बोलिए रोज क्या मोबाइल नंबर पूछ रहे हो. नहीं तो ठीक है. सीधा कस्टमर आया, कस्टमर का नाम अगर प्रॉपर से सर्च हो रहा है तो नाम डाला और बिल इनवॉइस बना दिया. ठीक है. इसके लिए सर अपन दिन में अगर 100 कस्टमर का नाम डाल सकते हैं, उसकी जगह सिर्फ अभी 20 या 10 ही कस्टमर के नाम डालते हैं लड़के, क्योंकि वो नाम वो सर्च ही नहीं होता है. तो बार बार वो मोबाइल नंबर पूछना करना इतना टाइम नहीं रहता है. 2 से 3 कस्टमर एक साथ काउंटर पे रहते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता उन लोगों को. फाइन सर. नीलम. Yes, sir. I think we have previously discussed this, and we will be definitely passing on this feedback about customer search. And as soon as it's updated, we will announce it in the same community call. मैडम कम से 8 से 10 महीने हो गए ये चीज मेरे को पहले भी कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके मैंने ये डिस्कस किया था. और मैंने भी सर, नहीं, पिछली आपकी मीटिंग में और भी बहुत लोगों ने बोला था. सर ये बात में ले लेंगे सर. वी विल गेट बैक टू यू इमीडिएटली सर आफ्टर दिस मीटिंग. नो वरीज ऑन दैट सर. और दूसरा एक किसी और है सर. यस सर. जैसे अपन सेल्स पे क्लिक करते हैं, न्यू बनाने से पहले जो सेल इनवॉइस बनाए हुए वो लिस्ट जो खुल रही है, हाँ. उसमें अपन ऊपर मैं जैसे फिल्टर में डेट में डाल देता हूँ टुडे. अच्छा. अब पेशेंट नेम के ऊपर जो फिल्टर अपना काम कर रहा है A to Z वाला, ठीक है. उसमें अगर क्लिक कर रहा हूँ तो सर वो आज के अगर मेरे खाली 20 से 25 सेल इनवॉइस भी बने हुए ना तो भी बहुत लोडिंग ले रहा है, मतलब फिल्टर ही नहीं हो रहा है. अच्छा सर, ये पॉइंट भी मैं क्योंकि मुझे देखना है वो कैसा, वो क्या एरर है इसमें. सर आपका मैं नोट कर दूंगा सर. वी विल गिव यू अ कॉल बैक इमीडिएटली आफ्टर दिस कॉल सर. और इसमें सर ये बिल की जो लिस्ट खुल रही है, यहाँ पे सर एक फिल्टर आपको, या फिल्टर जो दिया है वहाँ पे एक फिल्टर ऐसा होना चाहिए कि जी आज अगर मैं देखना चाहूँ तो कौन से बिल में जो काउंटर सेल में बिल बने हुए वो हटा के, जैसे मेरे को आज पूरे कस्टमर के बिल देखने हो कि किस किस कस्टमर्स के नाम मोबाइल नंबर डाल के बिल बने हुए आज के दिन में, या जो भी मैं डेट डालू उस दिन में, सर वो ये खाली बिल लिस्ट सीरीज. ओपन देखनी हो तो. यस सर,
ये बिल में पूरा लिस्ट में वो सीक्वेंस में आएगा ना 1 2 3 करके। सो इन बिटवीन का हमारा वो काउंटर सेल्स ने रिमूव किया तो 2 इसके पहले 4 ASF आएंगे। वो क्या नहीं, कर सकते हैं हमें देखेंगे सर। रिमूव नहीं करना सर। फिल्टर अगर मेरे को जैसे खाली फिल्टर अभी आपने एक फिल्टर दिया है उसमें आपका दिया हुआ है जैसे ऑर्डर टाइप में, ठीक है। और एक फिल्टर है ऑर्डर मोड, और अच्छा एक फिल्टर है ऑर्डर फ्रॉम। तो वहीं अच्छा पे सर। अगर खाली एक हो जाए कि काउंटर सेल इनवॉइस हाइड करना है तो हाइड करके हम उसमें क्या हेल्प होती है सर कि लड़के जैसे रिमाइंडर नहीं डाल रहे तो मैं सारे के सारे काउंटर बिल को हाइड करके बाकी सब में अपन रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कस्टमर्स को। ठीक है सर, ठीक है सर। ये इसके बात मैं लिए ले लूंगा सर। विल जी गेट बैक सर डेफिनेटली। जी जी सर। हाँ सर, बद्रीनाथ सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर सेल्स इनवॉइस में कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद हिस्ट्री कम आता है सर, और कस्टमर का आएगा और एक कस्टमर का नहीं आ रहा सर वो। सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नहीं सर, वो इसके बारे में कस्टमर मैं टिकट भी रेज किया, टेस्ट किया। ठीक एक है बार सर। आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ये बात भी सही है सर। किसी कस्टमर का पूरा शो हो रहा है, किसी का शो ही नहीं हो रहा, और किसी का बहुत कम शो हो रहा है। और एक कस्टमर का नीचे भी शो होता ना, उधर ही सारा शो होता, अच्छा रहता। फिर वो आई ठीक है मार्क में क्लिक करके वो उधर हिस्ट्री में जाके देखना। ओके, वो उधर भी देखे तो भी एक एक कस्टमर का नहीं मिलता। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे को। सर। ठीक है सर, ठीक है सर, आपको मैं ले लूंगा। ठीक है सर, मैं देख सकूंगा वो क्या है हमारा डेवलपमेंट है बोलकर। ओके, और इन्वेंट्री में भी जो आइटम्स लिंक नहीं हुआ हम्म। उसको फोटो भी निकाल के डाला है। वो भी 8 मंथ्स 9 मंथ्स हो गए सर, फोटो भी हमें मेंशन करके। अच्छा वो सर। अभी आपका बैकएंड से वो अपडेट नहीं किया है, उसके बारे में टिकट राइज किया, वो भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अंडरस्टूड सर। ये दोनों के बारे में मैं गेट बैक करूंगा सर आपके। सर और भी यही इशू है रिटर्न लेके सर। आई एम फेसिंग, आई एम फ्रॉम कॉलिंग फ्रॉम कोलकाता। यस ठीक सर। है, सेल्स रिटर्न को लेके क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक बंदा मतलब मानिए एक कस्टमर आया, ठीक है, वो 100 रुपए का चीज अच्छा। रिटर्न किया, तो मैं रिटर्न इनिशिएट किया। तो अगले दिन आके वो 200 रुपए का अमाउंट, 200 रुपए का एक चीज खरीदा, तो उसके साथ वो 100 रुपए एडजस्ट होने वाला है, सिस्टम में एडजस्ट हो गया। ठीक है। लेकिन जो आपका आपका जो प्रिंटेड बिल निकलता है ना, हाँ उसमें जी। 200 ही निकलता है। उसमें पूरा एडजस्टेड अमाउंट क्या है, कौन से प्रोडक्ट के साथ उसका एडजस्ट हुआ है, ये डिटेल्स नहीं लिखा रहता है प्रिंटेड बिल में। ये एक बहुत बड़ा इशू है। ओके ठीक है। फाइन सर, मेरा सपोर्ट टीम के मैं कनेक्ट करके बोलता हूँ सर आपका। मेट्रो डोरा मिडटेक है ना। हाँ हाँ, मैं ये सपोर्ट टीम को भी, और आपका जो फीचर्स डॉट कुछ एक मेल है ना, चेंज हाँ जी। ऐसे कुछ मेल है, उधर पे भी मैं भेजा हूँ। तो वो बोल रहा है कि ये मैं 4 महीने से बोल रहा हूँ। ठीक है, सर अपोलॉजीज फॉर ये दैट एक सर। चीज। we will get back, we will get a solution on that sir. Sir ओके, actually एक yes, और इशू yes मैं sir. आपको बोलता हूँ। एक और इशू नहीं, मतलब ये बग है मैं बोलता हूँ। जैसे कि मानिए सेल्स जो पेज है ना, उसमें मान के चलिए 4 कस्टमर का सेल्स डिटेल्स दिखा रहा है, कितना का ठीक है। अमाउंट है। ठीक है, मानिए चारों क्रेडिट में है, और एक एक ने क्या किया, उसमें से एक बंदा मल्टीपल में पेमेंट किया। मतलब मानिए 1000 रुपए अगर उसका टोटल बिल हुआ है, वो 500 रुपए पेमेंट किया है और 500 रुपए अभी क्रेडिट है। ठीक है। लेकिन जब मैं क्रेडिट मारता हूँ ना, क्रेडिट फिल्टर करके जब दिखाता है, वो टोटल मान के चलिए 4 अमाउंट का 4000 हुआ है, लेकिन मेरे को मिलना चाहिए 3500, क्योंकि एक बंदा ने ऑलरेडी 500 दे दिया है। लेकिन ठीक है। वो क्रेडिट सेल में टोटल अमाउंट 4000 ही दिखाता है। पूरा ही ड्यू दिखा रहा है, वो भी सही है सर। ठीक है ठीक सर, एक ये कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करके देखना पड़ेगा एक और। सर एक्चुअली एक कॉल है कि हमारा हिडन फ्यूचर्स है क्या सेल्स और सेल्स रिटर्न का बग्स और इश्यूज ने मैं नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। सीधा सीधा एक सपोर्ट से मैं अरेंज कर सकता हूँ कॉल आफ्टर दिस कॉल। आपके बारे में कोई सेल्स और सेल्स रिटर्न में अभी मैं बोला ना वो हिडन फ्यूचर्स में कोई डाउट्स या नहीं तो कोई फ्यूचर्स रिक्वेस्ट है तो आपने बोल सकते सर ये कॉल में। ये सपोर्ट का कॉल तो मैं अरेंज करूंगा आपका ईच एंड एवरी ने नोट किया है। ठीक है। यस सर। सर सेल करने के टाइम पे जब कोई प्रोडक्ट्स कस्टमर को ऑफर रहता है 2+1 3+1, जैसे sir. अभी मैंने कल एक इशू रेस किया था मंच चॉकलेट, और 2 चॉकलेट्स लेने पे कस्टमर को 1 फ्री है। अच्छा सर। तो उसको परचेज एंट्री में ऑप्शन है फ्री का कॉलम एंट्री करने का, सेल एंट्री में ऑप्शन नहीं है। सर
सेल एंट्री में जैसे ऑप्शन नहीं पड़ेगा डिलीट क्योंकि रेजर होता है। हाँ। नॉर्मली क्या होता है कि हमें दवा करने का दवा है ना, वो खरीदने के लिए फ्री में नहीं दे रहे, ये पूरा Just FMCG one आइटम second, था। Shanta sir, यस just 1 second. Actually, we are recently launching something similar to that, and we will be having a community call for that as well. So वो problem उसमें solve हो जाएगा. हाँ, And हमारा सबसे another एक thing, ठीक है। yes, and another thing I wanted to mention that आपको अगर कोई भी मॉड्यूल में कोई भी इशू है, if you have any issues in any module related the software, every Saturday we have a specific call where you can come and tell your issues, and somebody from our side will help their, like, try their best to connect with you and then solve them. So all of you can join tomorrow at 4 p.m. itself, and then all of Tomorrow those 4 issues p.m. would be addressed. Yes sir. Yes sir, Shanta sir, please continue. थैंक यू नीलम सर। कोई जवाब है सॉरी, कोई क्वेश्चन है या हिडन सेल्स और हिडन परचेज सेल्स रिटर्न के बारे में? हाँ जी, वीरेंद्र को। हाँ जी सर, हमारे में जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट का सर एक हम मिनट। आपको यस सर, सॉरी सर, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बैकग्राउंड पेमेंट के बारे में। तो सर जैसे कि एक्चुअली पेमेंट चढ़ाते हैं 2 दिन के बाद चढ़ानी पड़ती है किसी की, तो उसमें बैक डेट का अपडेट नहीं होता जी, करंट डेट का अपडेट होता है उसमें पेमेंट का। सर अभी हमें में बोला ना सर, ये कॉल है तो वो सेल्स और सेल्स रिटर्न का वो इसका कॉल है, राइट? ठीक है जो नीलम ने बताया ना सर, कल हमारा चाय के सबके 4 बजे है, आपने वो उसमें ज्वाइन करके आपका इशू सब हो सकते हैं सर। ठीक है, कल 4 बजे। ठीक है कल 4 बजे सर। ओके। हाँ जी, SBM फार्मा। सर बोल रहे थे हम, जैसे कि सेल बिल करते वक्त हाँ जी। एक कस्टमर को टोटल 25 टैबलेट देना है, मतलब अच्छा। 2 स्ट्रिप, और यस सर, यहाँ 2 पे स्ट्रिप ज्यादातर यही होता है कि स्ट्रिप पे डिस्काउंट देते हैं, राइट? ओके, उस पे नहीं देते। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जब डील करते हैं तो हमको कैलकुलेशन कैसा करना पड़ता है? पहले 2 स्ट्रिप का अलग से सर डिस्काउंट हमारा करके देना पड़ता है। आपने डिस्काउंट सेट किया है ना, वो पूरा स्ट्रिप में हो गया ना, तो इसलिए नहीं आपने सर, क्या करना है फर्स्ट जब हाँ बोलिए सर। फॉर एग्जांपल 10 पैक है, राइट? उन्हें 25 टैबलेट्स दे रहा है, तो फर्स्ट आपने डिस्काउंट पूरा हो गया स्ट्रिप्स पे, और एल्स आपने 25 वहां पे एंटर करना है, क्योंकि डिस्काउंट सेट हुआ है स्ट्रिप में। तो फर्स्ट आपने 2 स्ट्रिप्स डाल के और दूसरा 5 डालकर डिस्काउंट रिमूव करके सेव करना पड़ेगा, क्योंकि लूज में आपने डिस्काउंट नहीं सेल करेंगे। सेम बैच रहा तो सर डिस्काउंट रिमूव होता ही नहीं है सर, वो कंटिन्यू डिस्काउंट में ही लेता है। सेम बैच है तो हाँ ठीक है सर, मैं नोट करूंगा, मैं गेट बैक करूंगा सर ये चेक करके। ठीक ठीक ठीक। सर हनुमान सर आगे। हेलो। हाँ जी सर, अपन सेल इनवॉइस बनाने के टाइम सब्स्टिट्यूट देखते हैं, अल्टरनेटिव ब्रांड जो भी दूसरा हाँ जी। मतलब सजेस्ट करते हैं कस्टमर को। हम्म। तो वहां पे सर कोई एक ऐसा फिल्टर या ऐसा कुछ होना चाहिए कि अपन या तो नियर एक्सपायरी का अपन गुड्स देख के कस्टमर को सजेस्ट करें कि सर आप ये ले लीजिए, या फिर मार्जिन हमारा ज्यादा हो वो वाले हम सजेस्ट करें कि सर ये ले लीजिए। सर वो हमारा पास ऑलरेडी है, वो हमारा वैल्यू एडेड सर्विस है ना, सहाय में है सर वो ऑप्शन, तो और बीच में शॉर्ट अपने इसमें नॉर्मल में था पहले। हाँ जी, पहले पे था, बट अभी हमने वो वैल्यू एडेड सर्विस है ना हमारा सहाय, उसमें वो अटैच कर दिया है। ओके, तो मतलब उसके लिए वो सहाय लेना पड़ेगा। जरूर जी। जी सर, और हमारा ऑप्शन है हमारा सेल्स कोटेशन का, राइट? आपको कोई इंस्टीट्यूशन सेल्स नहीं तो ये का कस्टमर ने आपको कोटेशन सेल्स नहीं, कोटेशन के पहले सेल्स पूछा, तो यू कैन आल्सो डू दैट, राइट? बाय क्लिकिंग सेल्स कोटेशन, एंड यू कैन click here, and whatever the customer name you can enter, and you can go with the quotation.
The advantage of this is if the customer comes back for a sales, right? The same quotation can be converted as sales. You have no need to type it once again. For example, I'm just creating this as a sales quotation. Right? If the customer comes back and I don't need to again create a sales invoice or sales this, you can just go and change it as a sales invoice. Just edit, and in settings you can click here and change it to the invoice. Other advantages of sales quotation are batch is not compulsory required. You can also add products that are in zero quantity in your inventory. Usually those products cannot be added in sales invoice, but in sales quotation you can definitely add that. Yes. सर Once the इसमें order is ये confirmed, सेल हाँ जी। कोटेशन में अगर कोई कस्टमर हमको फोन करके पूछता है भैया ये दवाई चाहिए, ठीक तो है। आप हमको कोटेशन वगैरह बता दीजिए या अमाउंट हम बता देते हैं, पर कोटेशन बताने के लिए उसको हम उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको प्रिंट निकालना पड़ता है, वो प्रिंट का फोटो अच्छा। फिर व्हाट्सएप करना पड़ता है उसको। इसका कोई लिंक के थ्रू नहीं जा सकते, जैसे सेल इनवॉइस का लिंक चल जाता है डायरेक्ट कस्टमर के पास। एक ये लिंक शेयर व्हाट्सएप में शेयर करना, सेल इनवॉइस का लिंक चल रहा है। हाँ हाँ, कोटेशन का नहीं जाता है। कोटेशन का भी करते भी है तो वो सिर्फ अपना ई वाइटल का पेज जाता है उसके पास, और कुछ नहीं जाता। ठीक है सर, मैं चेक करेगा सर यहाँ पे। सर ये कोटेशन राइज किया तो स्टॉक डेबिट होता सर, नहीं होता? नहीं सर, ये सिर्फ कोटेशन है। इनफैक्ट इन्वेंट्री में कोई नहीं इम्पैक्ट होगा। ओके, इसलिए बट आइटम तो कोटेशन में मेंशन होता। हाँ जी। और एक सर ये B2B में भी है सर कोटेशन का ऑप्शन? B2B, इसमें हमारा B2B है। एट प्रेजेंट नहीं है। एट प्रेजेंट नहीं है सर। हमारा फार्मेसी में B2B भी सेल्स भी चल रहा सर, होलसेल भी है। उसमें हमारा कोई चलान ऑप्शन चाहिए सर, उसमें चलान भी नहीं है। सेल्स देते ना, पहले सेल्स के पहले एक चलान देते, पैकिंग स्लिप, वो ऑप्शन है सर? पिकिंग स्लिप है ना सर वो पैकिंग सर स्लिप आज राइट नाउ। अच्छा, राइट नाउ वो ऑप्शन नहीं है। वो तो इम्पोर्टेंट था सर, वो वीकली वंस बिल करते हैं हमें इधर। ठीक है सर, वीकली चलान्स मैं ले लूँगा सर ये। चलान्स करते सर वीकली। हाँ, चलान का जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग मार्क यूज करते हैं ना, अगर बिल छोटा होता है तो वो लोग चलान दे देते हैं। ठीक है, उसके चलान दे बाद के बाद में 1 वीक के बाद वो बिल जनरेट करते सर। हाँ, करेक्ट। ये B2B में है ना सर? हाँ, B2B का सर, वो इम्पोर्टेंट है वो हमारे को। है या फिर आप लोग चालान क्रिएट कर रहे हैं? चलान भी रिसीव हो रहा मैडम, चलान भी हमें भी देना पड़ता। हमें अगर आप परचेज चालान रिसीव कर रहे हैं तो आप परचेज चालान है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चालान क्रिएट कर रहे हैं एज अ होलसेलर भी किसी करना और मैडम। रिटेलर के लिए, तो करंटली वो फीचर अवेलेबल नहीं है। वी विल टेक इट ऑन एज फीडबैक। सेल चलान चाहिए मैडम, परचेज नहीं, सेल चाहिए। So we will take this on as a feedback. यस। दूसरा कोई क्वेश्चन है ना सर सेल्स कोटेशन में और सेल्स? I want. Verma Pharmacy. Yeah. Go for it. Hello. Yes sir. I have a very small question. I have few customers which pay me my balance amount at the end of month or at the starting of the month, but they have like 7 or 8 invoices throughout the month. Okay. So is it possible that I can send them a single link so they can pay on them with a single link? Most of my customers actually pay through credit card nowadays. Okay. Yes sir, definitely that is available. So Shanta sir, if you can just share your screen. Just a minute. So if any customer has multiple invoices that are due and you want to send them one payment link. Yes. To pay for all of those, so you can just go to the customer section. Okay.
search on with that customer's name and select all the invoices that you want to pay, and in the more option you will be seeing a feature called send payment reminder. So they will be able to pay you through our online payment gateway, and they can also use credit card or debit card there. And the great thing about this is we are not taking any MDR charge or any other platform charge here. It's completely free of cost. Yeah, that I know. And if suppose there is a customer who want to pay, from whom I want to take advance first, so is it So possible to currently, still no, share them? No. currently advance is not available. You will not be able to record customer advance in the system, but this is something that we have been internally discussing about. Okay. So it will be there in some time. Are there any Yeah, chances or not? manually, but not via the payment link. Manually, maybe. I am not sure about that. Manually, not manually. Maybe I was thinking. No, not via payment link. You will not be able to take advance. Okay, no problem. And one more question I have. So I run a generic medical store. So I have many companies which are not listed in your data. Many products, I mean. And I have uploaded them through the mobile app. But the salt composition Okay. is not maintained. When I search for substitute of from a brand name like Belma 40, if I click on the substitute right arrow, it should show what I have, but it never shows. So the products which I have uploaded through my mobile. So So their have you salt, raised their a ticket about this? yeah, once I have raised and this is Okay. Could I'm you just telling please you drop 6 your, or 7 times. yeah, could you just drop your chemist ID or your registered number so we can get back to you about this? We would need to check about that. Yeah, I'll raise the ticket. Yes, sir. Just drop your registered number or chemist ID in the chat. We will get back to you. Okay. Okay. Yes, Saket, sir. Thank you. Please go on. Welcome. I had a question about the sales quotation. So, Yes, sir. I just wanted to ask if you guys can give an option to when we make a sales quotation for the stock to get deducted from the inventory, because sometimes what happens is that we have like Indian Army camps here, and they basically they get like orders. They give us orders, and then they ask for a quotation from us, and then we give them a quotation, and usually it's like very big orders, and then they get funds approved, and when the funds is approved, sometimes it takes 1 week, 2 weeks, sometimes it takes even more. And when they get the funds approved, then they come and they pay, and then they take like the final bill. So what happens is sometimes it also does not get approved, and we have to cancel it. So the issue that's happening is that we make the quotation and we give it to them, and then like 2-3 weeks passes because it's already not debited from the inventory. So we are just selling normally, and then they come back and they're like, you gave this quotation, and can you supply us the goods? But we don't have the goods in hand because we already sold them, because it was not debited from the inventory. Do you understand what I'm trying to say? Yes, sir. Yes, I understood this. It's like reserving for a particular customer, right? Sorry. Stock reserving, like stock reserving for a particular customer. Yeah. So it's basically like if the sales quotation, if I made the sales quotation, and it gets debited from the inventory, I will not be able to sell it to other customer, right? So, but now it's not getting removed from the inventory, and it's there. And when the customer is coming back after like 2-3 weeks, when the fund is approved or whatever the reason may be, and there are few items which are not in stock anymore because I we agree, already sir. sold them. I got it. Right now, we could not able to commit on that. We'll discuss internally and get back, sir. Yes, Saket, sir. I don't think quotation would be the perfect solution Right. for that. Yes, for this. Yes. You should need to have like something other. We can figure out something and we'll Because get I back to also you. cannot bill. I could make like a credit bill, but sometimes it also happens that it's like the quotation, it does not go through. And then if I'm making a sales bill, like if I'm saving a bill, if I'm making a bill on credit, it comes in my sales for that day. It comes in it affects my GST report for that month. And if the Yes. sale is not going through, then I have to make like a sale return for the whole bill. So it's like affecting like a lot of things GST wise as well. And it's usually like very very big orders. It's not like a small like 2-3. It's usually like supply orders.
and stuff But like that. Saket sir, if you're creating a GST return, then I don't suppose that your GST will be affected at all, because it would be canceling each other out, Yeah, because I you're mean, creating a eventually, return. yes, but still it'll show like in the sales of that month, right? And Yes. it's showing in the sales of that month, and the stock is getting reduced, but the stock is actually there with me. You know what I mean? Hmm. Yeah, I So think a deeper discussion is needed on that. Yeah, for this. Yes, sir. yeah, so I just wanted to like mention this because sales Sure. quotation, I think in the previous software when we had the quotation option, it used to get debited from the inventory. Actually, we had an option that we could choose if we want to get remove it from the inventory or not. So that I just wanted to make this suggestion. Okay, I think I will be taking it as a feedback, and Yeah. we will be getting back to you. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. So anyone Yes, else? Acme Pharmacy. ACME. Yes, Acme Pharmacy. Hello. हाँ Hello. जी. Yes, sir, I'm audible. Yes, you There are is audible. one minor question that अगर मारे डिस्काउंट कैटेगरी प्लस मोबाइल नंबर ऊपर फिक्स करनी हो तो मैम प्लीज आप हिंदी में बात कर सकते हैं, एक्चुअली काफी यस लोग हैं ना यहाँ पे. श्योर मुझे डिस्काउंट मोबाइल नंबर प्लस कैटेगरी पे फिक्स करना है तो नहीं हो सकता है, इसमें ऑप्शन है ऐसा अवेलेबल? नो मैम, करंटली नहीं है. आप कस्टमर वाइज कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे या कैटेगरी पे कि डिस्काउंट क्या लगा होता है सकते कि सब में ऑथोरिटी नहीं होती है, कोई कस्टमर ऐसा भी होता है जिसमें अलग अलग डिस्काउंट अप्लाई होता है और वो अप्लाई करने के बाद मुझे डिस्काउंट भी वेरिएट होता है, अलग अलग बेस्ड ऑन कस्टमर होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं एज अ स्टाफ? यूजुअली किस तरीके से डिसाइड होता है कि आप कितना डिस्काउंट देने वाले हैं? यस, फॉर एग्जांपल के कोई कस्टमर है जिससे हम रेगुलर बेस्ड हम 2% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, बट वो एक कस्टमर है जिसे हम 5% देते हैं, तो उसमें लॉक डिस्काउंट होता है कि लाइक इसको 5% ही देना है, बट क्या होता है कि हम ऑल ओवर कैटेगरी पे 2% लॉक कर दिए जाते हैं, तो वो 2 से 5 नहीं होता है, तो मुझे करना हो तो बेस्ड ऑन मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, ऐसे पूछ रही हूँ। नो मैम, करंटली ऐसे ओवरराइडिंग इफेक्ट में कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है. और सेकेंड वो ऑप्शन है मैम कि जब जितनी बार हम परचेज करते हैं उतनी बार अगर बैच चेंज होती है तो उतनी बार हमें डिस्काउंट भी लॉक करना पड़ता है, तो वो डिस्काउंट बेस्ड ऑन बैच है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नहीं है, तो वो क्या थोड़ा वर्क ज्यादा हो जाता है हमारे लिए. कोई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट हमें देखने की रह जाती है तो वो ओपन हो जाती है, डिस्काउंट नहीं होता है जिसमें. जब आप न्यू परचेस एंटर करते हैं और सेव एंड सेट पे जाते हैं तो आपका जो पुराना डिस्काउंट होता है वो रेफरेंस के लिए वहाँ पे ऑटो फिल्ड होता है, बट वो लॉक नहीं होता है. वही मैम, मुझे वो लॉक चाहिए कि बेस्ड ऑन बैच नहीं, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, एक बार किया वो फिक्स हो गया. मैं क्या Okay, ऐसे we will take this as a feedback again. Yes, Shama sir, you were saying something. तो मैम बेसिकली वो क्या होता है, पूरा चेंजेस है ना वो बैच नंबर्स में भी होता है ना, प्रोडक्ट में नहीं होता है. रेट इंक्रीज या डिक्रीज आपने डिस्काउंट ने लॉक कर दिया तो दूसरा बैच में एमआरपी और परचेस प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपका लॉस हो जाएंगे ना. यस आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा क्या होता है कि सर ये पॉसिबल नहीं है कि सबके पास वो अथॉरिटी हो, जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास नहीं है, तो ये क्या हेक्टिक हो जाता है ये वर्क हमारे लिए, तो प्रोडक्ट वाइज होगा तो इजी पड़ेगा ना. ठीक है मैं ये हम एलेक्स से डिस्कस करेंगे, हमें कॉल कर सकते हैं आपका साथ. और सेकंड मेरा डिस्काउंट के रिगार्डिंग था, वो आप एक बार देख लीजिए, बेस्ड ऑन मोबाइल, बेस्ड ऑन कैटेगरी. श्योर. ओके डन, थैंक यू. सर हनुमान सर, आपका क्वेश्चन है? हेलो. हाँ जी सर, सेल इनवॉइस बनाते हैं तो मैंने इसके रिलेटेड पहले भी टिकट भी जनरेट किया और कस्टमर सपोर्ट में भी कॉल किया और उसको भी बहुत टाइम है. जैसे मैं एक आज नया कस्टमर के साथ डील कर रहा हूँ, वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ. अब उसकी और मेरी बातचीत हुई, मान लो कि अगर वो मेरे को 3,000 से ऊपर का बिल की वैल्यू बनेगी तो मैं उसको 5% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन अगर उसकी 3,000 से बिल के ऊपर वैल्यू नहीं बनी तो फिर मैं उसको 0% डिस्काउंट दूंगा. ये मेरी उसके साथ में बात हुई.
ठीक है। अब जब वो कस्टमर आया, मान लो कभी भी नेक्स्ट में, और मैं दुकान पे नहीं रहा, तो पीछे अगर पहले अगर मेरे साथ वो बिल बना के गया हो 3,000 जिसमें मैंने 5% डिस्काउंट दिया, अब वो आज आया उसने 500 की वैल्यू ली, तो लड़के क्या करते हैं, अब उसकी हिस्ट्री में जाके देखते हैं 5% दिया हो तो वो और दे देते हैं डिस्काउंट उसमें 500 वाले में भी, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कौन से कस्टमर के साथ कैसे डील की हुई। तो मैं खाली इतना ही बोला था उनको सपोर्ट में कि अपन अगर कस्टमर मास्टर में जाके वहाँ पे कहीं पे भी पॉपअप का एक सेटिंग हो कि अपन जैसे ही वो कस्टमर का मोबाइल नंबर या नाम एंटर करे तो अपने सामने एक मैसेज का पॉपअप आना चाहिए कि ये मैसेज इसमें डाला हुआ, खाली मैसेज डालने की इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम अपने हाथ से मैनुअल टाइप करेंगे कि ये कस्टमर से अपनी ये बातचीत की हुई है। जैसे ही कस्टमर का नंबर डाला खाली वो पॉपअप विंडो खुलनी चाहिए। सर राइट नाउ हमें सेल्स बिल में एक नोट्स करके एक ऑप्शन है, हाँ वो नोट्स में आपने लिख सकते हैं। सर नोट्स में तो वो तो उसी पर्टिकुलर इनवॉइस में चला जाएगा ना, नेक्स्ट इनवॉइस बनाने के टाइम नहीं आएगा। ओके सर, आपने मोबाइल नंबर एंटर करो पॉपअप में चाहिए ना, और एक खाली आपने एक नॉर्मली मैसेज आना चाहिए, जैसे अपन कोई भी इनवॉइस सेट कर डिलीट या कुछ भी करते हैं तब मैसेज नहीं आता आर यू वांट टू डिलीट या जो भी, ऐसा खाली एक पॉपअप स्क्रीन आनी चाहिए जिसमें ये मैसेज टाइप किया हुआ होना चाहिए, जो अपन जो कस्टमर में जाके हमने वो टाइप किया वो उसी में खाली आना चाहिए। मैंने गिनती की 5 या 10 कस्टमर में अगर वो मैसेज टाइप किया हुआ तो जिसका जो मैसेज टाइप है वही मैसेज खाली स्क्रीन पे खुलना चाहिए। There are many section on this. I think we can't able to do this. Right? नो आई थिंक करंटली सर ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। अगेन वेरी सॉरी टू से, ये जो कॉल है वो काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए था, लेकिन हम कम्प्लीटली डायरेक्शन से कहीं और ही निकल गए हैं। सो हमको जो कवर करना था वो तो पूरा रह ही गया और कॉल का टाइमिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। आपको कोई भी चीज़ में इशू है, आई वुड हाईली सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि हर सैटरडे हमारा इसी चीज़ के लिए कॉल होता है कि कोई भी चीज़ में आपको ऑपरेशन वाइज कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप आके बोल सकते हैं। कल मैडम भी आपकी 4 सब बजे बात ये सही कॉल है, आपने अवेलेबल है। सेल्स और सेल रिटर्न का बोला ये बात भी सही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि रिजोल्व हो ही नहीं पा रही, तो क्या करें हम भी, आप भी बताइए। तो रोज जैसे हमको टाइम मिले जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ बताते हैं कि ये, और इसमें अगर कोई चीज ऐसी भी हो कि ये चीज मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी आपके चलो हम समझते हैं कि उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे 22 लोग और भी हैं जो स्पेसिफिकली जो हम टॉपिक था उस बारे में देखने और सुनने आए हैं, इसलिए जी आप डेफिनेटली कल ज्वाइन कीजिए सर। आपको शायद कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए इस पे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। जी ओके, एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट सेल्स कोटेशन स्पेसिफिकली? Yes, SPM Pharma. सर सेल्स में जैसे ये कोई कस्टमर का बिल बनाते हैं, ठीक है, तो नीचे में तो सारा वो दिखाता है लास्ट कि ये सब आइटम लेके गया है कस्टमर, राइट? हाँ जी। पर उसमें एक लिमिटेड ही दिखाता है, उससे ज्यादा नहीं दिखाता, वहीं पे दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ सर हो वो सकता है फ्यूचर में कभी? ट्राई करेंगे सर। सी फॉर एग्जांपल ये वो एक कस्टमर है ना, वो आपका एक 10 साल का कस्टमर है, तो वो पूरा हिस्ट्री स्क्रीन में नहीं ले सकते ना, तो वो है नहीं, पूरा रीजन हिस्ट्री, परचेज। पूरा हिस्ट्री नहीं, मतलब कम से कम 3-4 बिल, या फ्रिक्वेंटली क्या सबसे ज्यादा लेके जाता है, ऐसा कुछ? वो इमेज में आ रहा है ना सर, वो फ्रीक्वेंटली क्या ले रहा है वो सब इमेज में आ रहा है ना। नहीं सर, जैसे कि अभी मैं एक कस्टमर है अभी 3 महीना पहले उसने एक सिरप लेके गया था, ना ही अभी हमको उसमें कस्टमर हिस्ट्री में दिखा रहा है वो, ना ही वहाँ पे सर दिखा रहा, हम टोटल वो जो फ्रीक्वेंटली चीज़ें लेके जाते हैं ना, फ्रीक्वेंटली काफ़ी, तो वो सारी चीज़ें हम आपको नीचे इमीडिएटली शो करते हैं। उसके अलावा कस्टमर सेक्शन में आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी। 3 महीने अच्छा पहले भी अगर लेके गए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप उनके नाम से उनका प्रीवियस बिल सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको रीऑर्डर करना है तो। वो फीचर हमने अभी अच्छा थोड़ी देर पहले डिस्प्ले किया था। अच्छा मैम, इसमें हिस्ट्री कितना दिन पुराना वाला हिस्ट्री दिखाता है इसमें, वो प्रोडक्ट वाला में? सर इसमें डे सॉरी, स्पेसिफिक नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अच्छा नीलम मैडम, लेकिन उसमें 50 आइटम ही बता रहा है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। हाँ कृष्णकांत सर, ये बात अभी से हो गई है। हाँ, और ये कैसा है, अगर हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स लिया है तो वैसे भी वो ऊपर काउंट तो बता ही रहा है, हमें सिर्फ आइटम्स चाहिए, ऑल
बिल वाइज सेल हिस्ट्री नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कस्टमर का टोटल हिस्ट्री में जितना भी आइटम का परचेज है वो आइटम डिटेल होनी चाहिए। क्योंकि अभी वही वही हुआ, कस्टमर आया है कि हम लेके गए हैं आपसे, यस यस, हम ढूंढ रहे पता ही नहीं चल रहा कौन सा सिरप लेके गया है। बराबर है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो पता नहीं चल पा रहा है कि पहले क्या सेल किया है। उसके लिए फिर हमें उनकी एंटायर हिस्ट्री को सर्च करके वहां से एक एक बिल ओपन करके आइटम ढूंढना पड़ता है। कस्टमर कहता है हम लेके गए, हमारे पास हिस्ट्री में है ही नहीं। फाइन सर, आई विल चेक विद अवी कि उसने अब तक किसी से बात करी है या नहीं इस बारे में. विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू सर. श्योर। ओके, आई थिंक शांता सर वी कैन गो ऑन विद अदर फीचर्स. Yes. Sorry. This feature, right, we have in each of every screen in our software. For example, in this sales screen, if you want to see all the shortcuts of our software, right, you can just press F1, right? You can find all the shortcut keys which can be used in the keyboard without the help of the mouse, right? So these are the some most common shortcuts which can be used in the sales screen, right? Like if you want to see the invoice breakdown, instead of clicking, you can use use the keyboards, and this is the shortcut keys, right? And next is our B2B section. And if you want to take the customer, bill the customer without GST customer as well, you can also have an option for that. For example, if I'm typing some customer name in B2B, and if you want to add him as a new pharmacy and without GST, it is also possible. You can just save here. You can say he has a GST number. You can mention the GST number. If not, you can use without GST option and you can start billing. Like this, you can use this option. So, any questions on this? I would like to add something. Yes. Even in the B2C section of sales, when there is a customer who is asking you to put their GST number, even though it is a B2C sales, अगर रिटेल सेल्स है लेकिन फिर भी कस्टमर जीएसटी वाला बिल मांग रहा है उनका जीएसटी नंबर डालने के साथ, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. आप उस कस्टमर का भी जीएसटी नंबर डाल सकते हैं और उसके साथ भी उनको बिल दे सकते हैं. वहाँ पे जीएसटी का पूरा ब्रेकडाउन भी आ जाता है. जैसे कभी कभार होता है कि कोई कस्टमर आता है और वो कोई कंपनी के नाम पे बिल बनवाना चाहता है क्योंकि उनकी कंपनी उनको रीइम्बर्स करती है वो प्रोडक्ट्स के लिए जो भी उन्होंने खरीदे होते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है. Yes. नीलम मैडम, ये बिल B2C में बनेगा या B2B में बनेगा जिसके आप बात? B2C में बनेगा सर, बट अगर आप GSTR1 की रिपोर्ट निकालेंगे तो वो B2B सेक्शन में आएगा. हाँ, मतलब बनेगा B2C में, लेकिन JSTR में उसका इफेक्ट आएगा. यस. थैंक यू. Another feature that we have is of wild search in sales. Shanta sir, can you please share your screen? Yes. It was explained actually. सो समटाइम्स आप लोग को प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं जिसमें से आधा अधूरा वर्ड समझ में आ रहा होता है, आगे का समझ में आ रहा है, बीच का लेटर समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट का समझ आ रहा है. तो मान लीजिए अगर आपको पैरासीटामोल सर्च करना है तो आप PAR लिख के एस्ट्रिक लगा के एंड देन रेस्ट भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से वो आपको मेडिसिन सर्च होके मिल जाती है.
मतलब ये पावर सर्च सिर्फ ये सेल्स में ही काम कर रहा है, इन्वेंट्री में नहीं काम कर रहा है। हाँ, करंटली ये सेल्स में ही काम कर रहा है। और कस्टमर अगर में पावर, इन्वेंट्री में भी रिक्वायर्ड है तो वी जी, कैन टेक इट एज अ फीडबैक। या इन्वेंट्री भी होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ सेल्स में तो ओनली अवेलेबल प्रोडक्ट का ही हमको स्टॉक दिखता है या डिटेल्स दिखती है। जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो इन्वेंट्री में सर्च करनी होती है ना। ओके, श्योर सर, वी विल टेक दैट एज अ फीडबैक। और सेम पावर सर्च कस्टमर में भी होना चाहिए, जो अभी आगे भी कोई बता रहा था कस्टमर सर्च में। हाँ, कस्टमर सर्च इज अबाउट टू बी इम्प्रूव। वो हमारा जो पिछला कॉल हुआ था सर्च के बारे में, वहाँ पे मेंशन किया गया था, किसी और का ही फीडबैक था, तो वो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। थैंक यू। Shanta sir, if you have any other features to add, please go on. But it is upcoming, right? Right now we don't have that feature, but as sir mentioned, we can mention the tags in the customer, right? So instead of name or mobile number card, we can use the tags to search customers. Yeah, it is in customer Yes. profile, Yes. right? Yes. Okay. Because sometimes customer spelling is very long or it is confusing. For example, Shakuntala Srivastav. So some Okay. will write it as SH, some will S. Some with SHA kind of. Yes, that's a problem. Na? So for the regular customer also there is a problem to how to find him. Yeah, just like your We name. are already working on that, sir. Yes, you are writing Santa. We have one customer says Savitri, but it is Savitri. So by searching Savitri, we are not able to find it. Understood, sir. We are improving a lot on the customer sites, right? So it will be updated in the core product. Yeah. Yes. No, neither. Do we have any more questions on this, sir? Okay. Okay. So like we mentioned, tomorrow is a call. It is an open call where you can just come, join, and then share whatever problems that you're having, any operational problem or any problem that you're facing with the software. Someone from our end will be able to help you with that. And on Monday, we will have our regular calls. Thank you.